فیصل آباد کی شان سنوکر میں اونچا کیا پاکستان کا نام۔ تیسری بار عالمی سنوکر چیمپئن شپ جیتنے والے محمد آصف کی وطن واپسی۔ کوثر آباد میں رہائش گاہ پر شاندار استقبال۔ محمد آصف کہتے ہیں پاکستان کے لیے کھیلا ہوں اور کھیلتا رہوں گا۔ عالمی سنوکر چیمپئن محمد آصف نے قطر کے شہر دوحہ میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر کے تیسری مرتبہ IBS سنوکر چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ محمد آصف گھر پہنچے تو عزیز و اقارب اور اہل محلہ نے آتش بازی اور ڈھول بجا کر خوب استقبال کیا۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف نے بھی استقبال کیا۔ عالمی سنوکر محمد آصف نے کہا پاکستان کا نام روشن کرنا اعزاز کی بات ہے، ملک کے لیے کھیلا ہوں اور کھیلتا رہوں گا۔ کہ میرے اللہ نے مجھے اس ٹائٹل سے نوازا اور میں تیسری بار اپنے ملک کا نام روشن کر سکا، اس میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں۔ پھر بھی میں کبھی نہ ہمت ہاروں گا، نہ ہی اس پہ زیادہ مطمئن ہوں گا۔ میں آگے بھی کوشش کرتا رہوں گا اور کوشش کروں گا پاکستان کے لیے اور مزید بہت سارے میڈل جیتوں۔ محمد آصف کے استقبال کے لیے ضلعی انتظامیہ سے کوئی افسر نہ آیا۔ محمد آصف کے بھائی ساجد بشیر بولے حکومتی اور سیاسی نمائندگان کو چاہیے قومی ہیروز کو سپورٹ کریں۔ کمشنر صاحبہ بہت سپورٹ کرتی ہیں، DC صاحب بھی کرتے ہیں، سپورٹس لور ہیں، تو امید کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم بھی کوئی بھی ایونٹ جیت کے آئے کسی بھی گیم میں تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے، صرف اس کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں جتنے بھی سپورٹس لور ہیں نا، ان کو چاہیے کہ ایسا ایونٹ کوئی جیت کے آئے تو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ محمد آصف نے تو پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا، اب دیکھنا ہوگا حکومت اپنے ہیرو کی کیسے پذیرائی کرتی ہے۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ موٹر وے پر سموگ اور دھند کا راج برقرار ہے۔ موٹر وے M4 کو پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد کے تینوں انٹرچینجز سے بھی موٹر وے پر انٹری بند ہے۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی بھی ہدایت سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب ہسپتال مریضوں سے بھر گئے، شہری دمہ، سانس الرجی، گلے اور آنکھوں کے انفیکشن میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں پر سموگ کے وار جاری۔ محکمہ صحت انتظامیہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 7512 مریض ہسپتالوں میں رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق سانس، دمہ، امراض چشم، دل اور الرجی سمیت دیگر بیماریاں شہریوں پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ جنگ کے شہری بھی فضائی آلودگی سے بیماریوں کے نشانے پر آ گئے۔ کھانسی، زکام، آنکھوں کے انفیکشن سمیت گلے کے امراض بڑھ گئے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں روزانہ 150 سے 200 تک مریض رپورٹ ہونے لگے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں روزانہ 150 سے 200 تک مریض رپورٹ ہونے لگے۔ متاثرہ افراد کو سانس لینے میں دشواری، نزلہ، بخار اور گلے کے انفیکشن جیسے امراض نے گھیر لیا۔ فلٹر کلینک میں سموگ سے متاثرہ روزانہ 150، ٹی بی کلینک 90 سے 100، جبکہ ANT OPD 120 سے زائد مریض رپورٹ ہونے لگے۔ بیڈس وارڈ میں 1 سے 5 سال کے 150 سے زائد مریض ریکارڈ کیے گئے۔ سموگ کے زہر سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنیوٹ میں بھی مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں کے دوران کھانسی، نزلہ، زکام، بخار اور دیگر بیماریوں کے 127 مریض رپورٹ ہوئے۔ کھانسی، نزلہ، زکام کے 36، آنکھوں کے 34، دیگر بیماریوں کے 57 مریض سامنے آئے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ شہری ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹ نے جرمانے کی نئی پالیسی متعارف کروا دی ہے۔ دھوئیں والی گاڑیوں پر پہلی بار 2000، دوسری بار 4000 جرمانہ ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ فوری بند کر دی جائے گی۔ تمام DCs کو ہدایت۔ سموگ پر کنٹرول کرنے کے لیے مارکیٹیں اور بازار 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ تاجروں کی جانب سے فیصلے کی حمایت کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ سموگ پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی سڑکوں پر دھواں اگلتی کھٹارہ گاڑیاں بند نہ ہو سکی۔ سڑکوں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، ٹرکوں اور رکشوں کی بھرمار۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے چلنے والی گاڑیاں فضائی آلودگی میں اضافے کی بڑی وجہ قرار۔ ٹریفک پولیس RTA کی کارروائیاں فوٹو سیشن تک محدود ہو گئیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ ضلع انتظامیہ سموگ کے تدارک کے لیے متحرک۔ 24 گھنٹوں میں دھواں چھوڑنے والی 116 گاڑیوں کے چلان 2 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ کیا گیا۔ زیادہ دھواں چھوڑنے والی 2 گاڑیوں کے روٹ پرمٹ بھی کینسل کر دیے گئے۔ تحفظ ماحول کی بڑی کارروائی۔ ممنوعہ فیول کے استعمال پر الحلال ٹیکسٹائل سمیت بڑی انڈسٹریز کو جرمانے، بوائلر بھی سیل کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحول سویرا حسن کہتی ہیں رواں ہفتے اب تک سموگ کے باعث بننے والی انڈسٹریز کو 40 لاکھ سے زائد جرمانے کیے گئے ہیں۔ جنگ میں گندم کی قیمت 2900 روپے منزل تجاوز کر گئی۔ گندم کے اجراء کی غیر متوازن پالیسی سے آڑتی پریشان، آٹے کے نرخ مزید بڑھنے کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔
जंग की मंडियों में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफे से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। जराये के मुताबिक गंदम की कीमत 2900 रुपए फी मन से तजावुज कर गई, जिससे आटे की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्की है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने गंदम की काश्त बढ़ाने के लिए इकदाम तो किए, मगर सरकारी गंदम के इजरा की वाजिया पॉलिसी अभी तक तश्कील न दी जा सकी। जिला भर में महकमा खुराक के गोदामों में 1,58,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद है, जिसको महफूज रखने के लिए फ्यूमिगेशन और गोदामों की देखभाल पर महकमा खुराक सालाना लाखों रुपए खर्च कर रहा है। आड़तियों के मुताबिक अगर हुकूमत बर वक्त सरकारी गंदम जारी कर दे तो कीमतों में इस्तेहकाम और शहरियों को रिलीफ मिल सकता है। आड़तियों का मजीद कहना था कि कई साल से गोदामों में रखी गंदम हुकूमत को तकरीबन 5500 रुपए फी मन में पड़ रही है, जिसका बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मार्केट गंदम की जो है वो अदम तवाज़ुन का शिकार हुई पड़ी है। गवर्नमेंट की जानिब से अभी कोई वाज़ह हिकमत अमली या कोई पॉलिसी नहीं आ रही सामने, और दूसरा गंदम की काश्त का टाइम भी हुआ है, ज़मींदार भी कशमकश में मुब्तला हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी गवर्नमेंट ने गंदम की खरीदारी नहीं की। तो इस साल भी अगर ज़िम्मेदार गंदम काश्त करे तो गवर्नमेंट खरीद ना करे, फिर ज़िम्मेदार कहाँ पर जाएगा। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को वाज़ह पॉलिसी देनी चाहिए, कोई इमदादी कीमत देनी चाहिए, तो इस ताकि ज़िम्मेदार को भी इसके लिए आसानी हो और मार्केट भी तवाज़ुन का। आड़तियों का कहना था कि अगर फौरी तौर पर वाजिया पॉलिसी न अपनाई गई तो मार्केट में अदम तवाजुन का खदशा है, जिससे कि आटे की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। चनियोट में यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ खत्म तो खरीदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। सामान मौजूद मगर गाहक दूर भागने लगे। शहर के 6 में से 2 यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। मजीद स्टोर्स पर ताले पड़ने का खदशा भी है। चनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स वीरान हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अमला तो मौजूद मगर गाहक गायब। मुतअद्दिद अशिया और नोश की कीमतों में रिलीफ खत्म होने पर गाहकों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। जहां बाज अशिया तो मार्केट से भी महंगी मुयस्सर हैं। चनियोट के 6 में से 2 यूटिलिटी स्टोर बंद हो चुके, जबकि मजीद 2 यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने के इम्कानात हैं, जिससे शहरियों को मिलने वाली सब्सिडाइज अशिया और नोश की सहूलत तकरीबन मुकम्मल खत्म हो जाएगी। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चनियोट। चिकन में फिर जान पड़ने लगी। निर्ख 14 रुपए बढ़कर 482 रुपए किलो तक पहुंच गया है। झंग में भी चिकन की कीमत को पड़ लग गए। 15 रुपए महंगा होकर निर्ख 482 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे बदस्तूर महंगे, 1 रुपए इजाफे से 332 रुपए दर्जन मुकर्रर। मार्केट में 340 रुपए दर्जन फरोख्त किए गए। मछली की कीमत 520 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 700 रुपए किलो दस्तयाब। नए आलू 135 रुपए फी किलो, बाजार में 160 रुपए तक फरोख्त। प्याज 10 रुपए कमी से 135, मार्केट में 150 रुपए तक बिकता रहे। डोबा में सस्ता होता चिकन फिर 12 रुपए महंगा होकर 480 रुपए किलो हो गया। अंडे की कीमत 330 रुपए दर्जन पहुंच गई। आलू की कीमत 135 रुपए बरकरार। मार्केट में 150 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 10 रुपए कमी के बाद 138 के बजाय 180 रुपए किलो। प्याज की कीमत 11 रुपए कमी के बाद 135, बाजार में 180 तक फरोख्त। गाजर 60 के बजाय 100, मटर 185 की बजाय 220 रुपए किलो दस्तयाब। सेब तिलाचा 230, अंगूर 230 के बजाय बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त। चिनियोट में भी चिकन की कीमत 14 रुपए किलो इजाफे के बाद 482 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपए इजाफे के बाद 332 रुपए दर्जन पहुंच गए। आलू नमकीन 130, मार्केट में 150 रुपए फरोख्त। प्याज 130, मार्केट में 160 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन 660 के बजाय मार्केट में 700 रुपए दस्तयाब। अदरक 50 रुपए महंगा होकर 770, मार्केट में 1000 रुपए तक फरोख्त। अंगूर गोला 220, संदरखानी 290 रुपए किलो के बजाय 400 रुपए किलो। वाला फॉरेस्ट पार्क फैसलाबाद को सफारी पार्क के एजाज से नवाजने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। सयाहों को सफारी राइड, शॉप्स और प्लेग्राउंड समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। फैसलाबाद गटवाला फॉरेस्ट पार्क को सफारी पार्क का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया। सफारी पार्क के क्याम के हवाले से समरी वज़ीर आला पंजाब ऑफिस को अरसाल कर दी गई। पार्क की तामीर से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक गटवाला पार्क 1984 में 1 करोड़ 56 लाख लागत से तामीर हुआ। पार्क का रकबा 131 एकड़ पर मुहित है। वाइल्ड लाइफ जिला इंतजामिया सफारी पार्क के जिम्मेदार होंगे। सफारी राइड, शॉप, प्लेग्राउंड समेत सियाहों के लिए तमाम सहूलियात का इंतजाम किया जाएगा। कैमरामैन अदरीस के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ शिकंजा सख्त। 5 कॉलोनियों की गैर कानूनी तामीर मिसमार करके दफातर सील कर दिए, 4 कमर्शलाइजेशन भी गिरा दी। मजीद जानते हैं वकास अहमद बेग की इस रिपोर्ट में। की गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाइयां। सत्याना रोड, सरगोदा रोड और शेखपुरा रोड पर 5 कॉलोनियों की नाजायज तामीरात को मसमार कर दिया गया। स्टेट ऑफिसर का कहना था 2 रोज में मुतअद्दिद तजावुजात को गिराया। समुद्री रोड पर गुलशन हरम और आइकॉनिक चक नंबर 198 में गुलशन रहमान, चक नंबर 197 में रहमान पार्क की गैर कानूनी तामीरात मसमार और 198 रेबे में इजाफी आबादी के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। FDA जराये का कहना है ना दहिंदगान डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाइयां रवां हफ्ते शुरू की जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। झंग लारी अड्डा की असर-ए-नौ तामीर का मंसूबा कागजों की नजर हो गया। 9 मरतबा की गई मंसूबाबंदी भी वक्त का ज़िया निकली। एशियन डेवलपमेंट बैंक से इमदाद लेने की कोशिश भी कामयाब न हो सकी। गोजरा रोड बाईपास पर नई जगह का तयन करके नया लारी अड्डे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। तारीखी शहर झंग का लारी अड्डा मसाइल की अमाजगाह बन गया। इंतजारगाह, बस टर्मिनल, पानी, सफाई सुथराई समेत तमाम सहूलियात से महरूम। पुराने लारी अड्डे की असर-ए-नौ तामीर का मंसूबा भी पाया तकमील तक न पहुंच सका। जेरिस कंपनी की 70 करोड़ रुपए की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब की गई मगर काम शुरू न हो सका। जदीद दौर को मद्देनजर रखते हुए गोजरा रोड बाईपास पर लारी अड्डे के लिए नई जगह का तयन किया गया, जिस पर 130 करोड़ रुपए की लागत आनी थी, मगर इस पर भी अमल ख्वाब बन गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, सहूलियात की दस्तयाबी का मुतालबा। इस तरह ये लारी अड्डा तो वेख के दरिया याद आ जाएगा। चगुर्दू सारा पानी खलोता है, वहाँ बड़ी मुश्किलात दे विच। अगर लारी अड्डा शिफ्ट हो जाए तो बड़ी बेहतरी है ताकि आवाम भी आसानी ना रासी। तो मेरा मशवरा है कि लारी अड्डा शिफ्ट होना चाहिए आवाम की सहूलतों से। बहुत अच्छी गल है, बहुत बेहतर जगह है। ट्रांसपोर्टर बड़े बड़े आने, मुसाफिरों को भी सहूलत मिलेगी, सवारियों को भी साफ सुथरा माहौल होएगा। वेख रहे हो जंग लारी अड्डे का की हाल है। मुसाफिर आन जान तो परेशान ने, नमाजी परेशान ने। कितना पानी उस साइड से भी खलोता है, 4 चफेरे वेखो, हर तरफ तकलीफ ही तकलीफ है लारी अड्डे की। वर्ल्ड बैंक ने भी मंसूबे के लिए फंड्स की फराहमी में दिलचस्पी जाहिर न की। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। कमालिया में शदीद धुंध के बायस मुसाफिर बस और मजदा के दरमियान हादसे के नतीजे में मजदा ड्राइवर के साथ बैठा शख्स मौके पर जाम बहक। मजदा सवार लिया से लाहौर फ्रूट लेकर जा रहे थे। जाम बहक होने वाले शख्स को लवाहिकीन के सपोर्ट कर दिया गया। कमालिया में शदीद धुंध के बायस मुसाफिर बस और मजदा के दरमियान हादसे के नतीजे में मजदा ड्राइवर के साथ बैठा शख्स मौके पर जाम बहक। मजदा सवार लिया से लाहौर फ्रूट लेकर जा रहे थे। जाम बहक होने वाले शख्स को लवाहिकीन के सपुर्द कर दिया गया है। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। कमालिया में शदीद धुंध के बायस मुसाफिर बस और मजदा के दरमियान ये हादसा पेश आया है और हादसे के नतीजे में मजदा ड्राइवर के साथ बैठा शख्स मौके पर जाम बहक हो गया है और मजदा सवार लिया से लाहौर फ्रूट लेकर जा रहे थे। जाम बहक होने वाले शख्स के लवाहिकीन के सपोर्ट कर दिया गया है। मजीद जानते हैं रिजवान अली से। रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया का ये नवाही इलाका है भागोवाना स्टॉप, जहां पर शदीद धुंध और स्मोक के बायस ये हादसा पेश आया। मुसाफिर बस और मजदा के दरमियान खौफनाक हादसा के नतीजा में मजदा ड्राइवर के साथ बैठा हुआ शख्स मौका पर जामबग हो गया। मजदा सवारियां लोड करती हुई बस से पीछे से टकराया, जिसके नतीजा में जो ड्राइवर के साथ उसका भाई बैठा हुआ था वो मौका पर जामबग हो गया, जबकि रेस्क्यू 112 की टीमों ने मौका पर पहुंचकर जो ड्राइवर था वो मामूली जख्मी हुआ, जिसको फर्स्ट एड दी। तो उसका ये कहना था कि वो किसी भी किस्म की जो है कार्रवाई नहीं करवाना चाहता और जो रेस्क्यू की जानब से जो जामबग होने वाले की डेड बॉडी थी वो उसके जो है लवाहिकीन उसके जो है फूट कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।